Good morning. I welcome you all to the 33rd Youth Parliament Session 2022. I hope this session will be fruitful. We begin with the oath or the affirmations of the newly elected members. Secretary General, please. Ms. Mansi Verma, who has been elected from Chennai constituency, Tamil Nadu, will now take oath of affirmation. Ms. Mansi Verma, please. Would you like to take oath of affirmation? In which language do you want to take oath? Master Eklavya, who has been elected from Patna constituency, Bihar, will now take oath of affirmation. Master Eklavya, please. Would you like to take oath of affirmation? In which language do you want to take oath? मैं एकलव्य स्वामी जो संसदीय क्षेत्र पटना बिहार से युवा सांसद 2022 के लिए लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता एवं एकता बनाए रखूंगा। Ms. Ansika Roy, who has been elected from Siliguri constituency, West Bengal, will now take oath of affirmation. Ms. Ansika, please. Would you like to take oath of affirmation? In which language do you want to take oath? নমস্কার, আমি অংশিকা রায় যে যুবা সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছি, ঈশ্বরের নামে শপথ করছি যে আমি বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং সম্প্রভুত্ব রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যের ভার আমি গ্রহণ করিতে চলেছি তাহা আমি নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহন করিব। Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House of the demise of our former colleague Sri H.K. Patil, who was elected from Ladakh Youth Parliament constituency. He passed away recently at the age of 88. He was a selfless social worker. He worked in the rural areas, devoting his time and energy for the development of agricultural laborers, upliftment of backward classes and the downward. Sri H.K. Patil was an able parliamentarian and an effective orator. He took keen interest in the proceedings of the House. His loss for the nation is irreparable. I pray to God to provide strength to his family and friends to overcome this loss. Thank you.
Honorable Speaker Madam, I rise to pay tribute to Sri H.K. Patil, whose death has been deeply mourned by. He was an able organizer of the party and had a very friendly behavior with everyone. Either of his party or opposition, he never let others feel his superiority. A simple man with guts to oppose the wrong. He was from a family of freedom fighters and followed his family tradition till his last breath. He made a valuable contribution to the development of his constituency and was a very popular leader there. I pray to God to keep his departed soul in peace. I should like to extend my deep condolence to keep his family and friends. Thank you. कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी संयोजित करती हूँ। श्री एच.के. पाटिल जी के साथ एक हस्ती के रूप में कार्य करना मेरा सौभाग्य था। वे अपने विद्वत स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे और उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। वे सदैव मुस्कुराते रहते थे और एक खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके नाम होने से हमने एक अच्छा सामाजिक, राजनीतिक एवं लोकप्रिय नेता खो दिया है। उनके स्थान की पूर्ति करना संभव है। उनकी कमी हमें सदैव खलती रहेगी। मैं इस शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने में स्वयं को एवं अपने सहयोगियों को संयोजित करना चाहूंगी। The House now stands in silence to express our deep sorrow. Honorable Prime Minister, to introduce new ministers, please. Honorable Speaker Madam, it's my pleasure in introducing to the House of Colleagues and the new Minister, Master Utkarsh, Minister of Agriculture. Ms. Mahi, Minister of Rural Development. Master Yash, Minister of Sports. That's all. Thank you. And now the question number begins. Question number 101, Ms. Lucky. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण ईंधन मूल्य में हुई बढ़ोतरी के संदर्भ में सरकार द्वारा देश के हितों की रक्षा के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है? ख. सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में हाइब्रिड ईंधन के अंतर्गत खोजे गए अन्य विकल्प कौन से हैं? माननीय ऊर्जा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी दल में यह बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति पर निगरानी रख रही है तथा भूराजनैतिक घटनाक्रमों के फलस्वरूप में तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित रखने, बाजार अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से उपयुक्त समझी जाने वाली सभी प्रकार की उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें कि कार्बोनेटिक पेट्रोलियम भंडारों से उत्पाद जारी करने संबंधी पहलों का समर्थन करना शामिल है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा को बचाने, पर्यावरणीय लाभों तथा घरेलू कृषि क्षेत्र को गति देने के व्यापक उद्देश्यों के साथ घरेलू जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में तेल विपणन कंपनियां तेल में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण कर रही है तथा बायोमास स्रोतों से स्फोटित जैव गैस (CBG) के कार्यक्रम के तहत उत्पादन एवं किफायती परिवहन हेतु सतत पहल की शुरुआत कर चुकी है। यदि कोई पूरा प्रश्न हो तो यस मिस प्रीति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि संपूर्ण विश्व परंपरागत वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिकल वाहनों पर शोध कर हमसे बहुत आगे निकल चुकी है।
सरकार इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस दिशा में बहुत सारे सुधारात्मक कार्य कर रही है, जिसमें कि सरकार जगह जगह पर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कर रही है तथा इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीदारी पे आयकर की धारा 80GG के अंतर्गत वाहनों के मालिक को आयकर में विशेष छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग में खरीदारी में लगातार वृद्धि हो रही है। महोदय, इलेक्ट्रिकल वाहनों के उत्पादन एवं अनुसंधान वृद्धि के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान भी किया है। सरकार ने आर्थिक अनुदानों द्वारा वाहन कंपनियों को प्रोत्साहन भी दिया है। Question number 1 or 2, Ms. Shreya. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आदरणीय रोजगार एवं श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी एवं असंतोष युवाओं की भावनाओं से परिचित है? क्या सरकार नए रोजगार के सृजन एवं युवाओं के नियोजन के लिए किसी ठोस कार्य योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा दें। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को ये बताना चाहूंगी कि रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले आंतरिक श्रम बल द्वारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अतः नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महोदय WPR में वृद्धि हुई है और वही अगर देखा जाए तो बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। नियोजनता में सुधार एवं रोजगार के सृजित हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा कोविड-19 जैसी महामारी जो कि पूरे विश्व को प्रभावित कर चुकी है, उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है और इस पैकेज के तहत सरकार 27 लाख करोड़ रुपए तक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज का मेन मकसद यह है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं तथा रोजगार के अवसर सृजित कराएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा सूक्ष्म लघु व्यापारी उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपए तक का गैर जमानती ऋण प्रदान कर रही है। Question number 1 or 3, Ms. Priya. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने कोविड-19 यूक्रेन युद्ध एवं अन्य मुद्दों के फलस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में हुए व्यवधानों से उत्पन्न अभूतपूर्व मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यथोचित प्रयास किए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। क्या सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए विशिष्ट प्रयास किए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। माननीय वित्त मंत्री, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति को नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय समय पर सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाती है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति का समाधान करने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। इनमें दालों पर आयात शुल्क, उपकर में कमी, प्रशुल्क का युक्तिकरण तथा खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लागू करना और तो और बफर स्टॉक का रखरखाव भी शामिल है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं
आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहूंगी कि इसके अलावा विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। जरा गौर दीजिएगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है, जो देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, जो वन नेशन वन राशन कार्ड द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में ही प्रदान कर देता है। एवं अप्रैल 2020 से यह योजना को विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है। निश्चय ही सफल एवं वर्तमान में क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 104, मिस आकांक्षा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं एवं वे कहाँ तक कारगर साबित हुए हैं? क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिस प्रकार कोविड-19 ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, उसके अवसाद से उभरने हेतु सरकार की क्या योजना है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में कोविड-19 के प्रकोप की बढ़ती हुई तीव्रता ने समय रहते बचाव, सक्रियता, श्रेणीबद्ध पूर्ण सरकार समाज आधारित दृष्टिकोण के लिए आह्वान किया तथा संक्रमण को रोकने, जीवन को बचाने एवं महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सरकार द्वारा लिया गया ऐसा ही एक साहसिक निर्णय था, जिसने कोविड को सफलतापूर्वक सीमित किया। इसके अलावा अनेक रणनीतियों पर काम किया गया, जैसे कि पहला, चिकित्सा आपातकालीन योजना, दूसरा, अस्पतालों की उपलब्धता, तीसरा, संगरोध सुविधा जिसे हम क्वारंटीन भी कहते हैं, चौथा, सूचना संचार एवं सार्वजनिक जागरूकता और पांचवा, निजी क्षेत्रों के साथ समन्वय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में आए असंतुलन के मुद्दे पर गंभीर है और इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठा चुकी है। देश के होनहारों को अवसाद से निकालने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। हमारी सरकार ने देश के हर विद्यालय एवं महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य सहयोगी दलों का गठन करना शुरू कर दिया है तथा इस कार्यक्रम को सामुदायिक स्तर पर लाने पर भी विचार कर रही है। इसी क्रम में मनोदर्पण कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत छात्र, अभिभावकों एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों को मनोचिकित्सक परामर्श देने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने मनोचिकित्सक परामर्श देने के लिए हर दिन 24 घंटे चलने वाला एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि हम शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को RIE यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में NCERT आधारित काउंसलिंग ट्रेनिंग में भी शामिल कर रहे हैं, ताकि बच्चों के बीच बन रहे अवसादों को स्कूली स्तर पर ही खत्म किया जा सके। इस सेवा की सफलता के लिए सरकार ने देश के हर हिस्से में सलाहकारों की समिति बनाई है एवं सलाहकारों का डेटाबेस बनाकर परामर्शदाताओं की सूची, परामर्शदात्री संस्थाओं की सूची, प्रिंटेड ऑडियो वीडियो केंद्रों की सूची जारी की है और बच्चों के लिए एक इंटरैक्टिव मोबाइल ऐप जारी किया है, ताकि उन्हें एक डेडिकेटेड इंटरैक्टिव चैट सेशन भी मिल सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई पूरक प्रश्न हो तो यस विशाल।
माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार ये बताने की कृपा करेगी कि कोविड-19 टीकाकरण को सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार की क्या रणनीति? माननीय स्वास्थ्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक रहा। इसके अंतर्गत न सिर्फ घरेलू स्तर पर कोविड टीके का उत्पादन किया गया, बल्कि टीकाकरण कार्यक्रम को प्रौद्योगिकी संचालित बनाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को भी जारी किया गया, ताकि लोग खुद को होने वाले कोविड-19 संक्रमण के जोखिम का आकलन कर सके। इसके अलावा टीका पंजीकरण, टीके का स्टॉक भंडारण, वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया तथा डिजिटल प्रमाण पत्रों का सृजन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 105, मिस आयशा। आई है भाई आई, नई शिक्षा नीति है आई। ये सरकार समाज के विकास के लिए नई शिक्षा नीति है लाई। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति शिक्षा जगत के लिए क्रांतिकारी बदलाव है, ऐसा तो ये सरकार कहती है, मगर मेरा इस सरकार से यह प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक शिक्षण पर बल देगा? माननीय शिक्षा मंत्री। जी माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह सुनिश्चित करना चाहूंगी कि शिक्षा देश के विकास के साथ साथ हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा, जिस देश का शिक्षा स्तर मजबूत होगा वह देश तेजी से तरक्की की दिशा में बढ़ेगा। यह नई नीति उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा दोनों में ही परिवर्तनकारी सुधारों की समीक्षा करती है। इसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भाषाओं में विविधता, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी सुधारों पर बल दिया गया है। महोदया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के प्रमुख कुमार कस्तूरखन जी ने 21वीं सदी और गुणवत्ता से समझौता किए बिना रोजगार का कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा नीति की परिकल्पना की है। महोदया, शिक्षा देश के अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। शिक्षा नींव है इस धरती की। शिक्षित व्यक्ति समझदारी से उचित निर्णय लेता। शिक्षा जैसे नाजुक विषय पे विरोध के नहीं बल्कि समर्थन की आवश्यकता है। Any supplementary question? Yes, Mr. Ji. माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि आजकल शिक्षा ग्रहण करने वाले अधिकांश युवक एवं युवतियां नशे की चपेट में हैं। इसके लिए सरकार का क्या प्रावधान है? क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? माननीय शिक्षा मंत्री। जी माननीय महोदया, जैसा कि माननीय ने बताया बिल्कुल सही। आज का युवा तरह तरह के नशे में फंसा हुआ है और युवाओं में तो यह आंकड़ा काफी ज्यादा है। नशे में फंसा युवक न केवल अपना नाश करता बल्कि अभिभावकों की उम्मीदों को भी धूमिल करता। नशे में भला किसका भला हुआ है? नशे में फंसा इंसान का नैतिक एवं सामाजिक दोनों ही पतन निश्चित है। महोदया, सरकार इस मामले में बेशक गंभीर है, मगर यह गंभीरता तो हम सभी को लानी होगी। सरकार ने इस मामले में कई कारीगर कदमें उठाई है, जैसे कि नवंबर 2016 में नार्को कोऑर्डिनेट NCORD का गठन किया गया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को वित्त सहायता के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। महोदया, सरकार ने ड्रग अपराधियों के लिए साइबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम SIMS का गठन किया, जो ड्रग अपराधियों का पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा। और सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 116, मिस अनुप्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ, क्या आपदा एवं प्रबंधन मंत्री यह बताने का प्रयास करेंगे कब उत्तराखंड में हुई बाढ़ में कितना नुकसान हुआ? क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी इस घटना के फलस्वरूप जो क्षति हुई है उसके लिए सरकार वर्तमान में क्या प्रयास कर रही है? माननीय आपदा एवं प्रबंधन मंत्री।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथी के प्रश्न के जवाब में यह कहना चाहती हूँ कि इस आपदा में हुई नुकसान का हमारी सरकार ने पूरा जायजा लिया है और इस आपदा के शिकार हुए लोगों को तत्काल राहत भी पहुंचाई है। हमारी जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 को बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा माना जाता है कि यह भूस्खलन, हिमस्खलन और ग्लेशियर झील के बहने के कारण हुआ है, जिसके कारण चमोली जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई। विशेष रूप से ऋषिगंगा, धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी के प्रमुख नदी क्षेत्र में इस आपदा में कम से कम 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। लगभग 168 लोग लापता है, जिसका हमें और हमारी सरकार को बेहद अफसोस है। आपदा की दृष्टि से इस संवेदनशील उत्तराखंड में भूस्खलन की चपेट में आए क्षेत्रों के उपचार हेतु सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में आपदा प्रबंधन की अप्रेजल कमेटी की बैठक में गोपेश्वर शहर के लिए 34 करोड़ और नैनीताल झील को बचाने के लिए 7 करोड़ के कार्यों की संस्तुति दी गई है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदया, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी व अल्मोड़ा जिलों में भी 7 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दे दी गई। यदि कोई पूरा प्रश्न हो तो यस मास्टर सूरज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आपदा एवं प्रबंधन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है, इस समय काफी तीर्थ यात्रियों का आवागमन हो रहा है, तो क्या सरकार उन तीर्थ यात्रियों के सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा रही है? माननीय आपदा एवं प्रबंधन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत के विकास का राष्ट्रीय मिशन प्रसाद केंद्रीय योजना है। इसे पर्यटन मंत्रालय ने साल 2014-15 में शुरू किया था। केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया है। इस योजना के तहत संबंधित चयनित स्थलों, जिसमें तीर्थ यात्रा विरासत स्थलों के एकीकृत करने के लिए काम किया जाता है। Now, bridge of privilege. Honorable Speaker, ma'am, a serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper of India, publishing false and distorted of the House's proceeding. The paper has attributed dishonest motive, and I request you to allow me raise a question on that matter now. Ms. Preeta, have you given a notice of it? Yes, ma'am. I have already given a notice of it and submitted a CD as a proof today at 10 a.m. Okay, it will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decisions. Thank you. Now, papers to be read. Honorable Minister of Personal Public Relations, Master Shreyas, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to lay on the table of each copy of the following notification, Hindi and English version under Indian Police Services Pay Amendment 2022, published in notification number GSR 186E in the Gazette of India dated March 2022. Honorable members, I have to make an announcement on my own behalf of the House. I have great pleasure in extending a warm welcome to His Excellency, Mr. George Tukai, Honorable Speaker of Tanzania Parliament, Dr. Ms. Tulia and Accent, Honorable Deputy Speaker of Tanzania Parliament, Mr. Andrew John, Presiding Officer of Tanzania Parliament, and Alexandra Ping, Social Worker and Activities from Tanzania. It's a high-level delegation on visit to India as our honored guest. We wish them a happy and a fruitful
beautiful state in our country and extend our warm welcomes and best wishes to the Honorable Government of Tanzania and the friendly people of Tanzania. Now, let us take up the calling attention motion. Ms. Savitri and Ms. Dipali will call up the attention of Finance Minister on the matter of inflation. Ms. Savitri, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सभा के समक्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। सभासदों, आप सभी ने 2010 में रिलीज हुई फिल्म पीपी लाइन को देखी ही होगी। उस फिल्म के संगीतकारों ने भी क्या खूब नचा। सखी सैया तो खूब कमाल, पर महंगाई लाए खाए जा। हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का भी बढ़ गया मोल और 70 भाई के अलग ही बोल। अरे जब से इनकी यह सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है। वस्तुओं की कीमतें कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है कि निम्न स्तरीय एवं मध्य स्तरीय व्यक्तियों के लिए आम दिनचर्या में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को खरीदना लगभग असंभव हो चुका है। पेट्रोल अथवा डीजल के दाम तो कुछ इस प्रकार से बढ़ रहे हैं कि आम व्यक्ति के लिए अपनी वाहनों में पेट्रोल या डीजल भरवाना अब हिचकिचाहट का विषय हो चला है। आए दिन इस बढ़ती महंगाई की चपेट में आकर अब गरीब व्यक्ति और भी गरीब होता जा रहा है। मैं आज इस सभा के समक्ष बढ़ती हुई इस महंगाई के कुछ कारणों पर रोशनी डालना चाहूंगी, जो मुझे मौजूदा सरकार की समर्थता पर विचार करने को विवश करता है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन का होना है। जब व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है, तब उस वस्तु की पूर्ति शायद नहीं हो पाती है। फलस्वरूप उस वस्तु की कीमत अपने आप ही दुगनी हो जाती है। आप बातों को गोल गोल ना घुमाएं, कृपया प्रश्न पूछिए। जी अध्यक्ष महोदया, प्रश्न पर ही आ रही हूँ। ऐसे में आम व्यक्ति के लिए उस वस्तु को खरीद पाना असंभव हो जाता है। लोग उन वस्तुओं की कालाबाजारी कम कीमतों पर कर उन्हें बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। Please maintain the decorum of the house. और अफसोस की बात है कि कालाबाजारी का यह जंजाल हमारे पूरे देश में फैला हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, महंगाई बढ़ने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, असफल सरकारी नियंत्रण तथा मनुष्य की स्वास्थ्य प्रवृत्ति। इसके अलावा बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि भी महंगाई बढ़ने के कुछ कारण हैं। और सबसे जरूरी बात, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात, महंगाई बढ़ने के पीछे उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी हाथ है, जो केवल अपने मुनाफे के लिए आम जनमानस की फिक्र छोड़ अपने उत्पादों को बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुझे भय है यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह महंगाई रूपी सूसा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को निकल जाएगी। इसी संदर्भ में मैं जरा चंद पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। सभासदों, गौर कीजिएगा। वाह जमाने तेरी फितरत कमाल, बढ़ती महंगाई का न कोई ख्याल है। सुबह से शाम तक पसीना बहाना हो, उस मजदूर की मजदूरी का भी सवाल है। ऐसे में मेरा मौजूदा सरकार से यह प्रश्न है कि आखिर यह सरकार इस गगन चूकती महंगाई को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है। आखिर कब तक इस बढ़ती महंगाई को चपेट में आकर एक गरीब व्यक्ति और भी गरीब होता जाएगा। क्या मौजूदा सरकार के पास प्रश्नों का कोई उत्तर है? यदि उत्तर है तो उत्तर स्पष्ट कीजिए। Honorable Minister of Finance, please. माननीय अध्यक्ष महोदया,
जैसा कि विपक्षी दल के सदस्य ने बताया कि हमारे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने पहले से बिगड़े हुए वैश्विक मुद्रास्फीति परिस्थिति और बिगाड़ दिया। अमेरिका मुद्रास्फीति के स्तर 8% से भी ज्यादा है, जो पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक है। युद्ध और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण महत्वपूर्ण सप्लाई चेन बाधित हुए हैं। तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दामों के कारण वृद्धि दर्ज हो रही है। महंगाई से निपटने के लिए सरकार गंभीर है और इसके लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। जी आपके ठोस कदम हमें दिखाई पड़े। मेंबर्स प्लीज। मिस दीपाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि सरकार महंगाई घटाने के लिए जो कार्य कर रही है उसमें कोई स्पष्ट नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई की रोकथाम के लिए समय समय पर हड़ताल और आंदोलन चलाए गए, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुई। इस महंगाई की वजह से कई गरीब व्यक्ति पहनने के लिए कपड़े तो छोड़ हो गया, एक वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई नौजवान शिक्षा से भी वंचित है, जिससे देश की 80% प्रतिभा का हराश हो रहा है। महंगाई की मार से आज हर गरीब व्यक्ति पीड़ित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों की कीमत जितनी नहीं बढ़ती महोदय, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसीलिए उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं आ पाता है। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर बड़े-बड़े सवाल उठाते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर बड़े-बड़े सवाल उठाते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं, उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं। तमाम सरकारी योजनाओं और कर्ज माफी के बावजूद महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या, फार्मर्स सुसाइड केस के मामले हम नहीं रहे। एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से नवंबर 2021 के बीच 2498 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश की प्रधान। जब गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब उसका सीधा असर गरीब और किसान पर पड़ता है। आज हालत तो यह है दोस्तों कि जो गरीब व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक वक्त की भोजन तक का जुगाड़ नहीं कर पाता है, आज उसे अपने भोजन के लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है दोस्तों, टैक्स देना पड़ रहा है। कीमत तो खूब बढ़ गई दिल्ली में धान की, कीमत तो खूब बढ़ गई दिल्ली में धान की, पर विदा न हो पाई बेटी किसान की, पर विदा न हो पाई बेटी किसान की। क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस तरह महंगाई आसमान छू रही है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं और कितने कारगर हुए हैं? और यदि सरकार महंगाई को रोकने के लिए कदम उठा रही है तो महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान क्यों छू रही है और गरीब की यह दशा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है गरीब की यह दशा? सरकार जवाब दे। उनको भी अपना पक्ष रखने दे। माननीय वित्त मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को ये बता देना चाहूंगी कि सरकार ने प्रमुख रूप से अनेक कदम उठाए हैं। जैसे पहला, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की। इससे सुनिए, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की। इससे सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा। उत्पाद शुल्क में कटौती से महंगाई कम होगी। दूसरा,
पेट्रोल डीजल की कीमतों में माल ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी। इससे सब्जियों और अन्य सामानों की कीमतों में गिरावट आएगी। तीसरा, केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत प्रति सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। इससे गरीब परिवारों को राहत होगी। चौथा, इसके अलावा सरकार ने ऑटोमेटिक सिस्टम लाने जा रही है, जिसके जरिए महंगाई को आसमान पर पहुंचने से पहले ही काबू किया जा सकेगा। Now, the House will take up legislative business. Honorable Minister of External Affairs to introduce the bill. Minister of External Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित किसी भी देवी पोषण पर रोक लगाने एवं वित्त पोषकों के विरुद्ध इस संविधान विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए इस संविधान विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is whether leave be granted to introduce the bill of weapons of mass destruction. WM have it, ayes have it, ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker Madam, I wish to take this bill. The bill will be considered in the next session of Parliament. Now, the House will take up consideration of Criminal Procedure Identification Act 2022. Minister of Home Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। निर्दोषों और गरीबों को शर्मसार कर जाते हैं, ईमान नहीं देखते जब अपराधी के बजाय कई भोले सजा खाते हैं, जब अपराधी के बजाय कई भोले सजा खाते हैं। रूप बदल कर सामने आने वाले तेरे चर्चे हर स्थान पर हैं। तू खुद को मासूम ना बता, तेरे किस्से हर थाने के दीवार पर हैं, तेरे किस्से हर थाने के दीवार पर हैं। अब बहुत हुआ, चलो दोस्तों इस देश को विकास की ओर ले जाएं। तथा देश से अपराध को मिटाएं, माननीय महोदया जी, अपराध का कानून उतना ही पुराना है जितना सभ्यता। जहाँ कहीं भी लोगों ने खुद को समूह या समूह में संगठित किया है, वहाँ के लोगों को नियंत्रित लाने के लिए किसी न किसी प्रकार के नियमों की आवश्यकता होती है। समाज को संचारों रूप में संचलन करने में अपराध महसूस किया गया है। वस्तुतः समाज में इस समस्या को समाप्त करने हेतु अनेकों उपाय किए गए हैं। अतः आज आवश्यकता इस बात की कि जो भी उपाय सरकार द्वारा लाए गए हैं उसे कारगर ढंग से लागू किया जाए। इसी अपराध को खत्म करने के लिए कई तरीके की संस्थाएं हैं और आकर्षण, और इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम विधेयक 2022 लागू किया है। इस विधेयक में गिरफ्तार की गई किसी भी व्यक्ति की निजी बायोलॉजिकल डेटा रिपोर्ट एकत्र करने की छूट है। कृपया ध्यान दें, इस विधेयक के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की निजी बायोलॉजिकल डेटा रिपोर्ट एकत्र करने की छूट मिलती है। पुलिस को गिरफ्तार की गई किसी भी व्यक्ति की अंगुलियों, पैरों, हथेलियों के निशान, रेटिना स्कैन, उनके भौतिक जैविक नमूने, विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखा हुआ
या अन्य तरह के बायोलॉजिकल डेटा रिपोर्ट एकत्र करने की छूट दी जाएगी। प्रस्तुत कानून 3 तरीके के लोगों पर लागू होगा। कृपया ध्यान दें, प्रस्तुत कानून 3 तरीके के लोगों पर लागू होगा। पहले, ऐसे लोग जिन पर किसी भी सजा के तहत प्रावधान की धाराएं लगाई गई हैं। दूसरे, ऐसे गिरफ्तार लोग जिन्हें किसी भी कानून के तहत सजा मिली है। साथ ही साथ तीसरे, ऐसे गिरफ्तार लोग जिन पर CRPC की धारा 117 रखी गई है, उन पर भी यह कानून पूरी तरीके से लागू होगा। Honorable Prime Minister, after listening to the evidence and provision of the criminal procedure identification Act 2022, I definitely agree as it contains appropriate provision which aim to strengthen the capacity of the police and forensic department checking criminal activities in the country. This bill allows enforcement collect samples and data and offer modern technology in this process. Therefore, Madam, I strongly support this bill and request all members of the House to pass this bill with a remarkable majority. And at last, I would like to thank our Honorable Minister of Home Affairs for introducing this bill, especially when the nation requires such type of bill to uproot crime in the nation. Thank you. Master Vishnu, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह अपराध खत्म करने की दिशा में अच्छा प्रयास है। इस बिल द्वारा आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया है। यह जांच एजेंसियों को पर्याप्त कानूनी रूप से स्वीकार और सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्ति का अपराध को साबित करने में मदद करता है। इससे अपराध की जांच अधिक कुशलतापूर्वक और तेजी से होगी और दोषी दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा बहुत बार पाया गया कि पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण मुजरिम बाइज्जत बरी हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बिल के पारित होने से अपराध की समस्या पर बहुत हद तक लगाम लग जाएगा। अंततः चंद शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ, न्याय में देरी न्याय से वंचित होना है। न्याय में देरी न्याय से वंचित होना है। कानून का राज तभी स्थापित होगा जब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। Honorable Leader of Opposition, Honorable Speaker Madam, I disagree with some provisions of the bill. The bill consists certain provisions which can raise concerns which I try to mention. Firstly, it violates the right to privacy of a person as it allows police to take measurement of a person against the will. Secondly, is a great scope of misuse of the proposed law in harassing individuals. It's unconstitutional and draconian. There is ambiguity in bill on how measurements for physical and biological are defined and whether narco analysis and polygraph tests are included in it. तानाशाही का गला घोटना ही होगा, जुर्म के खिलाफ खुद को झोंकना ही होगा। कह दो सियासत के ठेकेदारों से कि सुधर जाए, वरना अकड़ को इनकी सरेआम रोकना ही होगा। Honorable Minister of Home Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदस्यों और सदन को इस बिल में अपील की गई सभी आपत्तियों एवं संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करती हूँ कि यह बिल अपील की गई सभी आपत्तियों एवं शंकाओं का निराकरण करेगी। इस बिल में विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। विकास की गतिविधियों को अवरोधित करने वाले विध्वंसक तत्वों पर नियंत्रण लाना जरूरी है। मेरा यह मानना है कि देश का समावेशी विकास अपराध की समस्या को समाप्त करके संभव और अपराध की समस्या तभी समाप्त होगी जब ऐसे बिल हमारे देश में पारित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
मैं यह मानती हूँ कि भारत का समावेशी विकास अपराध की समस्या को समाप्त करके संभव है। और मैं इन शब्दों से ये प्रस्तावित करती हूँ कि आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम विधेयक 2022 पर विचार किया जाएगा। Honorable Prime Minister, Honorable Speaker, Madam, I hope that I give an answer of maximum issue of member. I once again thank you for your cooperation of passing this bill. Hence, I request this House to pass this bill. now the question is that the bill to provide of more effective measures from criminal procedure. Those who are in favor, please say ayes. Ayes. Those who are against it, please say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now we will take up clause by clause considerations. The question is that clause 2 to 5 stands pass on the bill. There is one amendment in clause 2 by Ms. Shreya. Honorable member, are you moving it? No, ma'am. After listening to the view of the ministers, I am no more in the favor of the amendment. Now the question is that clause 2 to 5 stands pass on the bill. Those who are in favor, please say ayes. Ayes. Those who are against it, please say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted and clause 2 to 5 stands pass on the bill. Now the question is that clause 1, the enacting formula and title stands pass on the bill. Those who are in favor, please say ayes. Ayes. Those who are against it, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister of Home Affairs, please. Yes, ma'am. I move the bill to be passed. The motion is adopted and the bill is passed. Those who are in favor, please say ayes. Ayes. Those who are against it, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, the House is adjourned to meet tomorrow again at 11 a.m.